Please introduce yourself. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Bharat Prasad. I am from Bokaro, Jharkhand. I did my schooling from DAV Public School, Alpania. After that, I have completed my Bachelor's of Physical Education from Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior, and my specialization is yoga. After that, I have completed my Master's of Physical Education from Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar. Sir, my highest achievement is I have participated in state level yoga championship, and I also did NCC certificate with Alpha grade. Sir, apart from my academic part, I did internship in three different schools. That is JNV Ranchi, DPS Anand, and Vikas Vidyalaya Ranchi. Sir, my hobby is folk dancing. That's all about me, sir. Thank you. Can you share your experience one? Sir, I did my schooling from three different schools. That is not about your schooling, your experience. Sir, experience what? In last part of your introduction, what you had told that you had done your some what? Sir, I done internship in three different schools, sir. Okay, you had done your internship in three different schools. Yes, why? Sir. How so? Sir, as a in part of physical education, in BPED course, there is 45 days internship. So in JNV Ranchi, I done 45 days internship in JNV Ranchi. And in MPED course, I have to do two internship. So I did one internship in DPS Anand and another in Vikas Vidyalaya Ranchi. What difference you had find in between the three schools? Sir, in terms of sport. Sir, I like to say that in JNV schools, there are more, I interacted with the sports and more opportunity given to me as a more opportunity and more responsibility provided to me because I was appointed as a sports teacher to prepare a team for different teams like volleyball and hockey and judo. And in DPS, I just have to take the classes and teach them some recreational games. And also, I have to take the three classes of 11, 12 in DPS. And in Vikas Vidyalaya, their sports culture was also good. There is various facilities are provided here, like basketball courts are very good. Sports facilities are good, like gymnasium is also there. That means you hadn't find any major difference in between the three schools. No, sir. There is no more difference between these schools. All are same. Little bit difference, sir. Not I can tell such amount of difference, sir. Okay. क्या पढ़ाया आपने 11 12 को DPS में? DPS में सर उनको मैं 11 12 का पढ़ाया था सर. लास्ट एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ाया था और डोपिंग पढ़ाया था सर. एक मिनट ना. सॉरी फॉर इंटरप्रिटेशन. ओके. या भरत जी, हम बात कर रहे थे आपके 11 12 में आपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और डोपिंग पढ़ा. यस सर. तो आप बच्चों को क्या नॉलेज देंगे डोपिंग के ऊपर? सर, मैं डोपिंग के बारे में फर्स्ट बताऊंगा वो डोपिंग क्या है, उसके अवेयरनेस के बताऊंगा सर, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और मैं बताऊंगा सर, और मैं ट्राई करूंगा कि एक अवेयरनेस कैंप चलाऊं डोपिंग के ऊपर. एंड ये सब मैं बताऊंगा सर डोपिंग का क्या इल इफेक्ट है एट द एज ऑफ एडोलेशन, और कोई भी एज में सर क्या इनके इफेक्ट पड़ते हैं और व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स सर. ओके. अब डोपिंग के बारे में बच्चों को ये बोलेंगे. आपका मेन गेम क्या है? योगा. यस सर. और आपने तीनों इंटर्नशिप में योगा सिखाया है? यस सर, तीनों इंटर्नशिप में मैंने योगा सिखाया सर. अपार्ट फ्रॉम योगा और क्या क्या गेम सिखाया आपने? सर, मैंने जेएनवी में सर हॉकी सिखाया, जूडो सिखाया सर, वॉलीबॉल सिखाया, और मैंने सर डीपीएस में सर मैं वॉलीबॉल सिखाया सर, और बास्केटबॉल सिखाया, और सर क्रिकेट सिखाया सर. मतलब आपको सारे गेम आते हैं? यस सर. ओके. बेसिक स्किल्स आते हैं सर सारे गेम्स के. बेसिक स्किल्स आते हैं. सर. आप हॉकी का टीम प्रिपेयर कर पाएंगे? यस सर. हॉकी का मुझे थोड़ा आइडिया सर इन टर्म्स ऑफ टीम. उनके टीम कैसे बनता है? आप उस टीम को कैसे रेडी करें? हॉकी की टीम को सर रेडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे उनके बेसिक्स मोटर कंपोनेंट्स चेक करने पड़ेंगे कि सर एक हॉकी प्लेयर में है या नहीं, लाइक स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, इंडोरेंस. उसके बाद सर मैं बेसिक उनके स्किल टेस्ट लूंगा सर, लाइक ड्रिबलिंग, पासिंग, रिसीविंग, और मैं सर उनके एक टीम गेम भी खिलाओ को देखूंगा कि सर उनमें टीम कोऑर्डिनेशन है या नहीं सर. बच्चों को आप पहले सिखाएंगे या स्ट्रेट अवे टेस्ट ले लेंगे? पहले मैं सर, अगर बच्चे नए हैं तो मैं उनको सर सिखाऊंगा, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा सर. बिकॉज इन केवीएस यू विल नॉट गेट ए हॉकी टीम मींस लाइक जेएन, क्योंकि वो बच्चे आपके पास तो गेम्स पीरियड में होते नहीं है. Yes, sir. इन स्कूल टाइम ओनली यू हैव टू टीच हॉकी. उस टाइम हॉकी सिखाएंगे या टीम फॉर्म के लिए इमीडिएटली आप टेस्ट ले लेंगे? नो सर, मैं उस टाइम सर पहले बच्चे को सिखाऊंगा, उनका हॉकी नहीं आता तो फिर वो कैसे खेलेंगे सर. फर्स्ट उनको बेसिक स्किल सिखाऊंगा सर, उसके बाद आफ्टर ए मंथ आई विल टेक ए टेस्ट, देन आई विल form a team. Suppose if you have 32 team. Yes sir. Sorry, not 30. If you have 17 team, how many bye you will give? What sir? If you have 17 number of team. Okay sir. कितना bye देंगे knockout fixture में? Sir, I have to calculate sir. It's only one, not even 1 minute. Calculate करिए. Yes sir. Hardly 2 सेकंड चाहिए इसके लिए. Yes sir.
Sir, how many team you told, sir? 17. Sir, 15 by, sir. 15 by you will give. Can you tell me something the difference between by and seeding? By are these are given to a team to not to play the first run. सर बाई जनरली दिया जाता है सर कि ताकि एक टीम जो फिक्सचर बने वो अच्छा बने और आपस में अच्छा से मैच हो सके। और सीडिंग सर एक स्पेशल टाइप ऑफ सीडिंग मतलब बाय दिया जाता है जो जो पिछले टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं डायरेक्ट वो क्वार्टर फाइनल में खेलते हैं सर। ओके, बाइज हम सेकंड राउंड थर्ड राउंड में देते हैं। बाय सर थर्ड सेकंड राउंड में नहीं देते हैं सर, स्पेशल सीडिंग देते हैं सर क्वार्टर फाइनल में बस। बाय सिर्फ फर्स्ट राउंड में देते हैं। यस सर। इन लीग फॉर्मेट? इन league sir I have not no had sir in league sir all rounds can be given sir। in league आप हर एक राउंड में बाय देंगे? sir I have not idea sir, right now I have not read। okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा? सर stress management through yoga can be done through the meditation practices and pranayama। by practicing the various types of pranayama and meditation one can release stress। in school you will get different age group starting from 1 to 12, that means students of 6 age to up to 17 and 8. How will you motivate them to take part in yoga because you have different age groups? Sir, I will firstly tell about the importance, what is the importance of yoga in their life and how it can help in their studies। moreover sir I will use different types of yoga practices। I will use variations in the yoga and for small childs I like nursery I like to use yoga games and by putting them into a condition like let's say perform a tree pose, how looks a tree and how looks a cat pose, like that I can teach the students of nursery। and for the students of the higher classes like 11th and 12th I like to, because sir these students are not likely to perform yoga generally, so I will motivate generally by giving what are the advantages and how the importance of yoga in their life। and I also would like to put the example of some famous personality that have achieved a good life, a good personality through yoga। okay, that means for 11 and 12 you will give them motivational speech with some different personality, because sir 11 12 वाले तो सर का चांसेस रहता है कि वो ज्यादा योगा पसंद नहीं करते हैं और उनको सर कंट्रोल करना। चलिए ओके, फर्स्ट थैंक यू भरत प्रसाद जी, थैंक यू सर। अभी हम उस पर बात करते हैं ना 11 12 को, जैसे आपने बोला ये क्वेश्चंस आपके लिए एक बार को हो भी सकता है इंटरव्यू में, क्योंकि स्कूल्स में आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक बच्चे मिलेंगे और हर एक एज ग्रुप को योगा कराना है ना आप, और हर एज ग्रुप को योगा कराने का कुछ तो मेथड्स अलग होगा, क्योंकि बड़े बच्चे को योगा कराना, एक्सट्रीम छोटे बच्चों को और एक्सट्रीम बड़े बच्चे दोनों को ही योगा कराना थोड़ा पॉसिबल, बट इट मीन्स थोड़ा सा दिक्कत आता है। बीच के बच्चों को कराना थोड़ा इजी, बच्चे जब टीनेजर में कंप्लीट हो जाता है, बड़े हो जाता है, फिर वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, और जो शुरू के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है तो वो लोग को इनको मजा नहीं आता है ना। इस हिसाब से थोड़ा सा उसको देखिएगा। आंसर तब भी लगभग ठीक है, बट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है ना इस आंसर में। आज मैं क्वेश्चंस इसीलिए पिक्चर्स वगैरह से आपसे बोला पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए है ना। yes, क्योंकि किसी भी स्कूल में टूर्नामेंट तो कराना ही पड़ेगा और फिक्चर तो बनाना है ना, और आपने ऑलरेडी 3 इंटर्नशिप कर चुके हो आप, तो एटलीस्ट आपको फिक्चर्स, नॉकआउट, लीग बहुत डेप्थ में नहीं होने से भी मिनिमम कितना राउंड्स में होता है, कितना बाइस मिलता है, कैसे बाय दिया जाता है, ये तो बेसिक, बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये। yes, आपसे कभी भी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट अभी जो आईपीएल में चल रहा है उस टाइप के फिक्चर्स बनाने भी नहीं थे, बट स्कूल में, क्योंकि वो सब स्कूल में अप्लाई नहीं होता है, बट स्कूल में जो अप्लाई होता है उसका बेसिक नॉलेज तो आपके पास। yes, अदरवाइज आपके कॉन्फिडेंस ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आपको पता है, कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस ठीक हो जाता है, जो आंसर आपको क्वेश्चन सुन के आपका कॉन्फिडेंस ठीक हो जाता है कि ये मुझे पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ठीक हो जाता है। जैसे आपको पता लगता है कि मुझे नहीं पता, तो आपका आंखें और आपके वॉइस सब कुछ हिलने लगता है ना। इसलिए प्रिपेयर करिए, आपका ठीक होगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा है, आप प्रिपेयर करिए।